हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 72 की, जो कि 20 जनवरी के लिए जारी की गई क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटिव वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आउट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास। आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो मेंडल यूज प्लांट्स दैट आर प्योर ब्रीडिंग homozygous for a trait and considered contrasting characters of it. He crossed plant with contrasting character and studied the progeny of first and second generation. Further, he calculated the ratio of plants with contrasting characters. तो पहले बात कर लेते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो while performing crossing experiment with Pasem that is garden pea, Mendel noticed that the traits of parents did not blend. For example, a tall plant and a short plant had offspring that were either tall or short but not medium in height. Such observation had led to research further. He performed a series of experiments with for that he performed an experiment with almost 30,000 plants and various contrasting traits. Based on this his experiment, he formulated some laws which are very important in studying about heredity and inheritance. If we took example of plant that was cross-pollinated with true breeding for violet plant and plant true breeding with white flowers, the resulting hybrid in the F1 generation is violet flower. After cell pollination in F2 generation, 3/4 of plants had violet flower while 1/4 has white flower. So the ratio become 3:1 in a phenotypic case बच्चों। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस की बच्चों। तो मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट हेट्रोजाइगोट इज अ टर्म व्हेन द टू ट्रेट्स या टू एलील्स प्रेजेंट इन पेयर and these are different from each other in case one is dominant and other is recessive. One trait या character will mask expression of another trait rather than both alleles contributing to the phenotype. The dominant allele will be expressed exclusively, the recessive allele will remain silent but will be transmitted to offspring by the same manner in which the dominant allele is transmitted. यानी जो dominant allele होगा, जो dominant होगा वो एलील तो शो होगा, जो रिसेसिव एलील होगा वो शो नहीं होगा। लेकिन हर केस में ये दोनों के दोनों ट्रांसफर होंगे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग बच्चों। अब their recessive trait will only be expressed by the offspring that have two copies of these allele, that is dominant trait allele is absent। ठीक है, these offspring will breed true homozygous when cell pollinated। अब डोमिनेंट कौन से होते हैं? द ट्रेट्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ ड्यूरिंग F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट, जैसे कि राउंड सीड हो गया, वायलेट कलर हो गया। रिसेसिव कौन सा होगा? द ट्रेट्स विच इज मास्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील लाइक रिंकल सेल एक्सेट्रा। ठीक है, अब आती है बात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बच्चों। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है आपका? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जब बात करते हैं, this law explained that the pair of alleles segregate from each other during gamete formation so that the one allele will be present in each gamete। जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है, यानी कि ऊपर जैसे दो कैरेक्टर नहीं, सिर्फ एक कैरेक्टर को हमें लेना है। ठीक है, यहाँ पे कलर ऑफ फ्लावर को ले लिया मान लीजिए हमने। Mendel proposed this law after being observing the pea plant with two different traits during offspring that expressed the dominant trait, but the following generation expressed the dominant and recessive trait in the 3:1 ratio. He observed that the traits which are absent in F1 generation, recessive trait had reappeared in the F2 generation। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा पूरा क्रॉस है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो दिखाया रखा। ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है? व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। तो ये आपके डोमिनेंट और रिसेसिव एलील है। ठीक है, ये आपका आंसर 1 है।
फिर क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए स्केच ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये है वो, ये आपका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस क्या होता है? व्हेन टू ट्रेट्स या एलील्स आर प्रेजेंट इन पेयर इन डिफरेंट, जो कि डिफरेंट पेयर है उसमें, और एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव, उसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस बेटा। ये आपका आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो ये आपका ये वाला एग्जांपल है, आसानी से आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, वर्क आउट ए क्रॉस बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ प्लांट इफ टॉल टी इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फ टी स्मॉल टी एंड फाइंड द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। तो बच्चों करना क्या है आपको, सीधे सीधे यहाँ पे कैपिटल P की जगह यहाँ आपको कैपिटल T लेना है, और स्मॉल p की जगह यहाँ पे स्मॉल t लेना है। क्रॉस एज इट इज कराना है, तो F1 जनरेशन में आपको मिलेगा कैपिटल T और स्मॉल t, और F2 जनरेशन में आपको सेम मिल जाएगा जब आप इसको क्रॉस कराएंगे। तो ये पूरा पूरा आपको आपके आंसर के तौर पे मिल जाएगा, आंसर नंबर 5। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।